What is more amusing is, you see, कि जैसे हमने कहा कि हर कौम का एक ट्रेट होता है, और इंडियंस का ट्रेट ये है कि नॉट जस्ट दैट दे आर कंपल्सिव लायर्स, दे आर एब्सोल्यूट ब्लडी इडियट्स एज वेल। ये पूरी कौम का ट्रेट है। भारतीय जो है ना, वो फूंक फूंक के कदम उठाता है। एक पहलू ये कि हम बिल्कुल ही जो है रूस वगैरह को और चीन को और सबको नाराज न कर रहे हैं अमेरिका। दूसरा ये है कि भारतीय कौम परस्ती बड़ी ताकतवर है, उसको बहुत गहरा किया है गांधी ने और नेहरू ने। आप मुझे बताएं किस एशियाई मुल्क में जमहूरियत से तरक्की हुई है? एक एक्सेप्शन है इंडिया की। इंडिया में कौम परस्ती है बहुत, और हिंदू बहुत प्रैक्टिकल है। हम तो जज्बात के मारे हुए लोग हैं। सारी एनर्जी सारा दिन सियासतदानों की, मीडिया की, पॉलिटिकल पार्टीज की, हर एक की एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ होती है। काम में किसकी एनर्जी लगती है? यानी जिस किस्म का ये अहमक और जाहिल कौम है, अस्तगफिरुल्लाह, यानी आई विश वी हैड ऑनरेबल नेबर्स, लेकिन हमें नेबर भी वो मिले हैं कि जो अस्तगफिरुल्लाह गाय की पिस पी के समझते हैं कि दे आर बिकम द बिगेस्ट इंटेलेक्चुअल्स ऑन दिस प्लैनेट। Mehwish says, are Ayurvedic medicines halal or haram? They sometimes contain cow urine. So Ayurvedic medicine is taken from the Hindus. Is it related to their religion? Most likely it is not. If it has concepts of treating the patient while attributing the healing process to their thousands of gods or Krishna or to whomever, Rama or whatever they call them, then this is not permissible. But if it's just a medication known to be used by the Hindus or by the Buddhists or by other religions, as a rule of thumb, such medication is halal. The vast majority of the medication we are using nowadays is taken from non-Muslims, whether Christians or other denominations, because they have the technology. Therefore, being Ayurvedic medication used, this is okay. I was suffering from serious cancer. There was no treatment which could cure me. Ultimately, I came to this ashram. And in this ashram, I got a relief from Gomutra and my cancer was cured. And I have decided to serve this ashram. Lifetime I will serve in this ashram. I will not take up any job because this ashram has given me a new life, new lease of life. My own experience, I said I was in a village doing cultivation. And when I got elected to the parliament, I had to choose either to work in the parliament or to be a farmer. And I had no option but to give up farming. When I gave up farming, I had severe pain in the knee joint. And when I went to get it examined, a doctor told me, you need replacement of your knee joints. I said, doctor, short of this, tell me anything I'll do, but I cannot go for knee replacement. Then he said, you strengthen your muscles. I said, okay. I was not able to climb the stairs. I started Vajrasana yoga, practicing yoga. Today I am able to boldly tell you, after that I could do even wrestling
without any difficulty. As long as we exist as an independent Islamic state, आपको हम जलाते रहेंगे, and you are burning, and I'm loving it, and we'll all, the whole Pakistani nation will continue to burn you with our existence, जिसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं कर सकेंगे। और ये जो सारी बात 1000 साल आप गुलाम रहे हैं, मुगलों के गुलाम भी रहे, गौरी के, खिलजी के, अब्दाली के, इन सब के आप गुलाम रहे, मोहम्मद बिन कासिम के आप गुलाम रहे, तो आपको हमने कॉन्कर किया तलवार की जोर पे। We have defeated you in every battle of Panipat and battle of Trai. So you have absolutely no history. You were slaves. You would become slaves after Ghazwa Hind once again, inshallah. Only the Britishers gave you some respite, and we'll take it back from you again. Do what you want. Do what you can. And there's nothing you can do about it. ये बहुत बहुत बड़ा एक, जैसे कहते हैं ना, जोक है, एक तरह का ये जोक है जो आपने यहाँ इस टीवी चैनल पे जहाँ बैठे थे वहां बैठ के आपने बात की है। और आई एम श्योर जो आपके सुनने वाले होंगे, जो आपके फॉलोअर्स होंगे, आपने अपनी ये बात, आपने अपनी ये नफरत उन तक भी पहुंचाई होगी। मतलब ये पहली दफा सुन रहे हैं कि जी वो हमारे गुलाम थे, 1000 साल हमारे गुलाम रहे, उसके बाद वो अंग्रेजों के गुलाम रहे, और उसके बाद हम अपने ही गुलामों से डर के भाग गए, इधर आ गए, और हमने कहा हम तो अलग रहेंगे, हमें पाकिस्तान बना के दे दो। मतलब कोई अक्ल होती है। और अब आजकल जो नई जनरेशन आ रही है उसको आप इतनी ढक्कन किस्म का ना समझो जैसे आप खुद हैं। तो मुझे ये बताना पसंद करेगा कोई, या जैद हामिद ये बताना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान बनाने की जरूरत फिर आपको क्यों महसूस हुई? अगर आप हिंदुओं को गुलाम समझते हैं सॉरी अगर आप हिंदुओं को गुलाम समझते हैं और आपका ख्याल है कि वो इतने सालों आपके गुलाम रहे, तो फिर आप उन गुलामों से डर के भागे क्यों? आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? आपने ये क्यों कहा कि हिंदुओं के साथ नहीं रहा जा सकता, इसलिए अपना अलग मुल्क चाहिए? ये पाकिस्तान बनाने का क्या फिर मतलब बनता है? अगर आपने 1000 साल हुकूमत की और हिंदू आपके अंडर थे और वो कुछ कर नहीं सकते थे बकौल आपके, वो तो आपके गुलाम थे, और उनके बाद जो है वो अंग्रेज का जमाना आया, अंग्रेज ने रूल किया, और फिर आप दोबारा जब अंग्रेज के जाने का टाइम आया तो फिर आप डर क्यों गए? आप किस बात से डरे कि आपने पाकिस्तान बनाया? आप उसी तरह से चलने देते, उसी तरह से जो है वो आप दोबारा हुकूमत कर लेते अगर आप में इतना दम था। तो आपने फिर ये क्यों सोचा कि अब हम जिनको हम गुलाम समझते रहे हैं, जिन्हें हम गुलाम कहते रहे हैं और अभी तक कह रहे हैं, उनसे डरकर आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? ये बात अगर आप मुझे बता सके तो बड़ा अच्छा होगा। वरना ये जो आप हर थोड़े दिन के बाद एक वीडियो निकाल देते हैं, ट्विटर पे स्टेटमेंट दे देते हैं, और हम लोग जो नफरतें कम करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों मुल्कों में अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश होती है कि लोग आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। वो जैद हामिद जैसे लोग जो ये ग़ज़वा-ए हिंद का करके और इस तरह के टॉक शोज में जो पाकिस्तान टीवी पे जो आते हैं, इस तरह के जो टीवी चैनल्स हैं जो इनको स्पेस देते हैं बात करने की, और उसके बाद एंकर जो हैं वो चुप करके वो सारा जहर सुनती रहती हैं। तो ये नहीं कि उनको रोकें, या खैर वो तो खुद भी बड़ी मशहूर है इस तरह की बातें करने में, तो उनको मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन उनकी अपनी चॉइस है कि वो क्या सुन रही हैं और क्या कह रही हैं। लेकिन ज़ैद हामिद तो बहुत बड़े अपने आप को बड़ी तोप समझते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर समझते हैं। तो फिर बताइए कि आप जो है वो जब आपने 1000 साल हुकूमत की हिंदुओं के ऊपर, और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए और फिर उन्होंने आपके ऊपर हुकूमत की, और जब वो गए तो आप उन हिंदुओं से डर के भागे क्यों? आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? वहीं पे रहते ना, आप दिखाते उनको, कहते हम फिर हुकूमत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और आप वहां से निकल के भागे ये कह के कि जी ये हमें तंग करते हैं, हम इनके साथ नहीं रह सकते। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में आपको मीडिया में बहुत से मुसलमान नजर आएंगे, उनके टीवी चैनल्स पे, कोई भी टीवी चैनल उठा के देख लें, कितना भी किसी भी न्यूज चैनल को आप देख लें, वहां पर आपको जो है वो दूसरे जो यानी हिंदू और सिख और क्रिश्चियंस के साथ साथ आपको बहुत सारे मुस्लिम एंकर्स नजर आएंगे, मुस्लिम जर्नलिस्ट नजर आएंगे। हमारे यहाँ क्या आप दिखा सकते हैं मुझे
कि हमारे टीवी चैनल्स पे कितने हिंदू काम कर रहे हैं, कितने सिख काम कर रहे हैं, नहीं, आप नहीं बता सकते, क्योंकि हम यहाँ पे उनको आगे आने नहीं देते। हमने तो उनको बिल्कुल दबा के रखा हुआ है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम हिंदुओं को दबा के रखेंगे तो या हिंदुओं को वहां जाके दबा के रखेंगे, आपकी सोच सिर्फ इधर तक ही है। आपने कभी नहीं सोचा कि आप जिस मुल्क में रहते हैं वहां पे आपने कितनी आजादी दी हुई है। वहां पे आप अगर हिंदुस्तान में देखें, अगर उनकी फिल्म इंडस्ट्री को चेक कर लें तो आपको पता चलेगा कि उनकी दिलीप कुमार साहब के टाइम से लेकर और अभी शाहरुख के वक्त तक जो है, हर दौर में उनके पास, हर टाइम उनके पास, हर साल में कहना चाहिए हर वक्त उन्होंने मुसलमान एक्टर्स को जगह दी है। डायरेक्टर्स, म्यूजिशियन, मोहम्मद रफी और ये सब लोग उसी टाइम के ना, और चलते चले आ रहे, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, हर जगह पे आपको हिंदुस्तान में मुसलमान नुमाया होता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब है उन्होंने मुसलमानों को जगह दी है, और उन्होंने हर जगह पे जो है वो आप चाहे उसको जैसे मर्जी समझें कि उन्होंने किस लिए किया है, क्यों किया है, वो एक अलग चीज है। अगर उसको आप नेगेटिव लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने हर जगह मुसलमानों को जगह दी है। चाहे उनका मीडिया, हमारे टीवी चैनल्स पे आपने देखा है कभी किसी हिंदू को कोई खबरें पढ़ रहा हो, कोई एंकर हो, कोई प्रोड्यूसर हो, कोई प्रोमिनेंट जगह पे कभी नजर आया आपको? कभी आपने देखा हमारी पार्लियामेंट के अंदर जो हिंदू मौजूद हैं, ठीक है 2-4 बेचारे पहुंच जाते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन उन्हें कोई जानता है? कभी आपने देखा है उनको कोई खास जगह पे उनको कि उन्हें आपने जो है वो आगे आने दिया हो? ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत कम होता है। वो भी उस वक्त जब कोई मंदिर तोड़ देते हैं और उस वक्त आपको अपनी गर्दन बचानी होती है सारी दुनिया के सामने, उस वक्त आपके पास 1-2 आपने साइड में रखे हुए, उनको लेकर आप सामने आ जाते हैं और कहते हैं जी बता दो कि हमने दोबारा बनवा दिया है। तो वो आपके हिंदू कम्युनिटी के जो MNAs हैं वो आके कह देते हैं जी पाकिस्तान ने जो है दोबारा जो है वो मंदिर को फिर से बनवा दिया है गवर्नमेंट ने, और बेचारे शुक्रिया उक्रिया अदा करके साइड पे हो जाते हैं। आपने कभी देखा है किसी जर्नलिस्ट को जो हिंदू हो और आपने उसको आगे आने दिया हो, उसके आर्टिकल्स प्रिंट होते हो, वो टीवी पे टॉक शो करता हो, बड़ा मशहूर हो, उसको सब जानते हो? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है। चाहे फिल्म इंडस्ट्री में आप देख लें, फिल्म इंडस्ट्री हो हमारी जब जिस जमाने में थी, अब तो खैर उसका कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसकी क्या पोजीशन है, कोई फिल्म में बनती नहीं कोई खास, लेकिन जब बना करती थी तब, और अगर टीवी ड्रामास बना करते थे और अभी भी टीवी ड्रामास बना करते हैं, उसमें आपने कितनी जगह दी है अपने यहाँ की माइनॉरिटी को? वहां पे आपको कितने लोग नजर आते हैं, कितनी परसेंटेज आपको नजर आती है जो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो? साथ के साथ बाकी पूरी कंट्री में भी जो है वो आपका बहुत तेजी के साथ जो है वो माइनॉरिटीज कम हो गई हैं, बढ़ी नहीं है। मतलब हिंदू जो है वो जितने पहले थे उससे कम हो गए हैं, क्रिश्चियन जितने पहले थे उससे कम हो गए हैं, सिख, पारसी और जितने भी दूसरे रिलीजन हैं सबके लोग पहले से बहुत कम हो गए। क्यों? सब मुसलमानों के कितने इम्प्रेस हो गए। हम लोग ऐसा क्या काम करते हैं मुसलमान के, हमसे हर कोई इम्प्रेस हो जाता है और धड़ाधड़ अपना रिलीजन छोड़ देता है। या फिर आपने उनको भगा दिया, वो भाग के कोई अमेरिका चला गया, कोई कनाडा चला गया अपनी जान बचा के, कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया, और उसके बाद जैद हामिद जो है वो बैठ के इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें करते हैं और इस तरह के दावे करते हैं। आपकी फौज में आपने कितने हिंदुओं को रखा है? कोई है, आप नाम बताएंगे कि जो बड़े रैंक पे चला गया हो, लेफ्टिनेंट जनरल बन गया हो, या इस तरह से बाजवा साहब वगैरह की पोजीशन पे जा चुका हो? कोई, आप मुझे कोई पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशन बता दें जहां पर आपने हिंदुओं को आगे आने दिया हो, जहां पे आपने क्रिश्चियंस को आगे आने दिया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ तो जो कमर्शियल्स भी प्रिंट किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि सफाई वाला चाहिए, तो वहां पे आप रिलीजन मेंशन करते हैं कि इस रिलीजन का होना चाहिए। मतलब हद होती है यार, मतलब शर्म नहीं आती आप लोगों को? और अब फिर आप आके इस तरह के टॉक शोज करते हैं, इस तरह के टीवी चैनल्स पे बैठ के बात करते हैं, और टीवी चैनल्स वालों को भी शर्म नहीं आती कि वो इस तरह की बात करते हैं। इंडियन डिबेट में मैं जाती हूँ, मुझे कोई 1.5-2 साल हो गए मैं इंडियन टीवी पे जाती हूँ, और ठीक है वो पाकिस्तान और इंडिया की बात करके वहां पे झगड़ा भी होता है, वहां पे डिबेट भी होती है, वहां पे लोग ऊंचा ऊंचा बोलते भी हैं, लेकिन कभी उन्होंने किसी मजहब को लेके बात नहीं की।
उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान में मुसलमानों का बुरा हाल कर देंगे या हम हिंदुस्तान में मुसलमानों का बुरा हाल कर देंगे। ये सिर्फ हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ के टॉक शोज में हम हिंदुओं को मजा चखा देंगे, हम उनको मट्टी चटा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, किस तरह के खानदान से उठकर आते हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड है इन लोगों का। इनको किसी ने तमीज नहीं सिखाई, इनके बड़ों ने इनको कुछ नहीं बताया और ये इस तरह की बातें करते हैं। तो जरा इतिहास पे आते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम, ये सबसे पहले जो है भारत में इन्होंने आक्रमण किया था 712 में। तो ये भारत के पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे और इन्होंने जो है कराची और सिंध वाले एरिया में कब्जा किया था। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि छोटे से एरिया पे अपना नियंत्रण कर लेने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरे भारत पे नियंत्रण कर लिया। अब ये कराची पे आपका नियंत्रण है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे भारत पे है। तो ये बात जो है गौर करने वाली है। अब इनका जो है बाद में कई और साल तक आक्रमण होते रहे पर ये भारत में घुसने में सफल नहीं हो पाए। तो अगले 400 साल तक जो है ये हमले होते रहे पर ये भारत के अंदर नहीं आ पाए। तो वहाँ की बॉर्डर पर जो उस समय जिनका शासन चलता था वो थे प्रतिहारा, वो जो कि राजपूत थे। तो ये बड़े ही स्ट्रांग थे। इन्होंने जो है 1 इंच भी जो है अगले 400 साल तक जो है किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर आते हैं हम 1000 साल के बाद के पीरियड को, 10वीं सदी से जो है जो शुरू होता है। तो यहाँ आते हैं महमूद गजनी। अब ये जो है ये लुटेरे थे, डाकू थे। एक्चुअल में कोई शासक नहीं थे, ये डाकू लुटेरे थे। तो जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब पुलिस नहीं होती है तो डाकू रात में आते हैं, गांव को लूटते हैं और भाग जाते हैं। तो इनका काम जो है यही था। ये आते थे, मंदिरों पर हमला करते थे, लूटपाट करते थे और चले जाते थे। तो यहाँ पे भी शासन कुछ नहीं था, सिर्फ जो है लूटपाट वाली चीज़ थी। ये डाकू टाइप थे, रूलर नहीं थे। फिर जो है चीज़ें यहाँ से बदलना शुरू होती हैं 1192 से। तो यहाँ पे जब सेकेंड बैटल ऑफ टरेन होता है, यहाँ से जो है भारत का जो है नक्शा बदलना शुरू होता है। तो पहला युद्ध हुआ था गजनी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो ये जो युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान ने गजनी को बुरी तरह हरा दिया था। इसके बाद जो है गजनी ने जो है उनसे माफ़ी मांगी, कुरान की कसम खाई कि अब जो है वो भारत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा, कभी हमला नहीं करेगा। और ऐसा बोला था उसने, माफ़ी मांगी थी। तो इसके बाद जो है पृथ्वीराज चौहान ने उनको छोड़ दिया था। उन्होंने माफ़ सिर्फ एक बार किया था, 17 बार नहीं। कुछ लोग बोलते हैं 17 बार माफ़ किया, तो ये बात भी गलत है, सिर्फ एक बार किया था। तो साल भर बाद जो है वो फिर से जो है अफगानिस्तान तुर्की से एक बड़ी सी सेना इकट्ठी करके आता है और हमला कर देता है 1192 में। सेकेंड बैटल ऑफ टरेन होता है। तो ये जो है यहाँ से चीज़ें बदलना शुरू होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लड़ाई बड़ी टक्कर की होती है, बड़ी लंबी चलती है। और फिर जो है गजनी जो है संधि की पेशकश करता है कि हम जो है सीज फायर कर देते हैं। तो पृथ्वीराज जो है इसके लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वो उस कैंप में जाते हैं जहाँ पे संधि पर हस्ताक्षर होने हैं, राजपूतों की सेना बिल्कुल रिलैक्स थी क्योंकि युद्ध खत्म हो गया था। तभी जो है अचानक से गजनी जो है हमला कर देता है, धोखे से हमला कर देता है। और वहाँ पे जो है ये सेकेंड बैटल ऑफ टरेन जो है वो उस धोखे के कारण जो है जीत जाता है। तो यहाँ से जो है पहला जो है शासन जो है वो शुरू होता है। तो ये जो शासन है कहाँ तक लिमिटेड था? दिल्ली, पंजाब और छोटे मोटे आसपास के एरिए तक ही लिमिटेड था, पूरे भारत पे बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पे भी अधिकतर जो भारत का राज्य था, जैसे उड़ीसा वाले पूरे एरिए पे, वो जो कि बहुत बड़ा था उस समय, तो वहाँ पे गजपति शासकों का रूल चलता था। और विजयनगर किंगडम जो है बहुत बड़ी किंगडम थी, जो साउथ इंडिया से शुरू होती थी, सेंट्रल इंडिया तक जाती थी। वो जो है वहाँ पे बड़ा सा उनका रूल था। तो एक छोटे से जो है एरिया में जो है यहाँ पे गजनी का जो है नियंत्रण शुरू होता है और यहाँ से जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। अब अगले 400 साल तक जो है कई लोग आते हैं जाते हैं और एक एरिया में जो है राज चलता है। ये एरिया जो है छोटा होता है, कभी बड़ा हो जाता है, वो चीज़ चलती रही। तो अगले 400 साल तक जो भारत का नक्शा रहा वो ऐसा रहा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लू वाला एरिया है ये है दिल्ली सल्तनत वाला एरिया। तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि मुस्लिम रूल जो है चल रहा था। ये इतना एरिया है, पूरा कंप्लीट इंडिया नहीं है।
तो कंप्लीट इंडिया का होने के लिए हमें एटलीस्ट 50% से ऊपर भारत पे तो राज होना चाहिए, तब तो हम बोल सकते हैं कि हमारा वो राज है। तो यहाँ पे भी जो है पूरे भारत पर राज्य नहीं था, आधे से भी कम वाले हिस्से पे ही था। तो यहाँ पे कई सारे जो है वो आते हैं, जैसे लोदियों का राज होता है, इल्तुतमिश आते हैं, खिलजी आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, तुगलक आते हैं। तो ये सब जो है इन लोगों का 400 साल तक राज रहा, इस एरिया तक जो सीमित रहा। तो यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं ये पूरा भारत बिल्कुल नहीं है। 1526 से जो है शुरू होता है मुगल शासन। तो मुगल एक्चुअल में मंगोलिया के जो हैं चंगेज खान, उनके जो है वंशज हैं, और चंगेज खान मुसलमान नहीं थे, वो जो है ताओ जो धर्म है उसको मानते थे। बाद में जो है उनकी जनरेशन कन्वर्ट हुई थी। तो बाबर जो है एक्चुअल में आधे मंगोल थे और आधे जो है अफगानी थे, तो इस तरीके थे। तो इन्होंने 1526 से जो है इनका जो है राज शुरू होता है, आक्रमण शुरू होता है, और 1530 तक जो है ये रहते हैं, 4 साल ही रहते हैं, बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो राज था वो कितना था, वो इतने एरिया तक सीमित था। तो ये जो आप हरा एरिया देख रहे हैं, ग्रीन कलर का एरिया देख रहे हैं, ये बाबर का राज था। बाबर के बाद जो है इनके बेटे आते हैं हुमायूं। तो हुमायूं भी ज़्यादा टिक नहीं पाते, हार जाते हैं। हारने के बाद जो है वो भाग जाते हैं ईरान, और 12 साल तक जो है ईरान में जो है वो निर्वासित जीवन जो है व्यतीत करते हैं। उसके बाद जो है फिर से वो भारत पर यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब अगर हम पूरे मुगल शासन को देखें कि कितना एरिया जो है एक्चुअल में उन्होंने जो है जिस पे राज किया, तो पहला एरिया तो बाबर वाला हो जाता है, जो अभी हमने देखा। बाबर का जितना था उतना ही हुमायूं का रहा, तो हुमायूं कुछ ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाए। बाबर के बाद जो हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर आते हैं। तो अकबर ने जो है डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपेंशन कर दिया था, और वो एक्सपेंशन वो इसलिए कर पाए थे क्योंकि अकबर की जो नीतियां थी वो थोड़ी सी लिबरल थी। शुरुआत में अकबर भी जो है खूंखार कट्टर थे, लेकिन 15-20 साल जब वो लड़ लेते हैं तो उनकी समझ में आ जाता है कि ऐसे लड़ते रहेंगे तो जिंदगी भर लड़ते ही रहेंगे। तो फिर जो है वो राजपूतों के साथ जो है एक तरह से सेटलमेंट सा कर लेते हैं, और इसी के बाद जो है वो एक्सपेंशन कर पाते हैं। तो यहाँ से आप जो पीला वाला एरिया देख रहे हैं, तो ये पीला वाला एरिया को अगर हम देखें तो इतना जो है अकबर ने जोड़ दिया। यहाँ से अगर हम इतना इतना लेके चलें, इतना ये एरिया, तो ये एरिया जो है मुगल रूल में जो है अकबर ने ऐड कर लिया, इतना एरिया। तो यहाँ आप जो है बोल सकते हैं कि 50% वाले लेवल पे अकबर पहुँचा देते हैं। फिर अकबर के बाद जो है शाहजहां, जहांगीर जो भी आते हैं, उनका लगभग इतना ही रहता है, और जो एक्सपेंशन होता है वो औरंगजेब के समय होता है। तो औरंगजेब के समय जो है इतना एरिया जो है और ऐड हो जाता है, तो ये हो जाता है यहाँ तक का। तो औरंगजेब के समय हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है लगभग 70-80% इंडिया जो है वो मुगल रूल के अंडर आ जाता है। तो यही एक ऐसा पीरियड है जहां हम बोल सकते हैं कि भारत पर राज हो रहा है। उससे पहले तो कुछ एरिया तक ही जो है बात सीमित थी। तो यहाँ औरंगजेब के समय ही जो है वो एक्चुअल जो है इंडिया वाली बात आ जाती है, और उससे पहले हम थोड़ा बहुत बोल सकते हैं अकबर के समय पे। अब अकबर की भी खास बात अगर हम देखें तो अकबर के लिए अधिकतर लड़ाइयाँ किसने जीती? मान सिंह ने, जो कि एक राजपूत थे। अकबर के एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे? बीरबल थे, जो कि एक हिंदू थे। अकबर का फाइनेंस कौन संभालता था? पूरा का पूरा टोडरमल संभालते थे, जो कि एक हिंदू थे। तो अकबर के 9 रत्नों में से आप देखेंगे तो 2-3 को छोड़ के जो है सभी हिंदू थे। तो अकबर की एक लिबरल पॉलिसीज चलती थी, और इसी के कारण जो है वो काफ़ी बड़े एरिया पे जो है वो नियंत्रण कर सके। अब इस अकबर वाले एरिया में भी कई जगह जो है राजपूतों की अपनी इंडिपेंडेंट रूल जो है वो चलती रहती थी। तो एक टाइप की दोनों के बीच में सेटलमेंट थी, संधि थी कि आप जो है हमें मत छेड़ो, हम जो है आपको नहीं छेड़ेंगे। कई जो है शादियां भी आपस में हुई, मैरिज अलायंस भी हुए, ताकि जो है इस चीज़ को जो है और अच्छा जो है पुख्ता करा जाए। जब शादियां हो जाती हैं तो हमले वाली बातें जो है वो कम हो जाती हैं, रिस्क हो जाता है। तो एक्चुअल में औरंगजेब और अकबर के समय का ही जो है वो पीरियड था जहाँ पे 50% इंडिया से ज़्यादा पर रूल हुआ। अब अगर हम और बात को समझें तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि मुगलों का रूल जो है वो
800 साल या 1000 साल बिल्कुल नहीं है, वो है 100 साल का ही। तो फिर से मैप पर आए तो ये जो एक्सटेंशन हुआ जहाँ पे 50% इंडिया से ज़्यादा इनका कब्जा हो रहा है, वो 100 साल का ही पीरियड है। और औरंगज़ेब ने जितना भी गेन किया था वो ज़्यादा टिक नहीं पाया, 10 साल में ही जो है वो सारा लूज कर दिया। मराठा जो है वो बहुत तेज़ी से उभरते हैं और लगभग जो है 80% भारत से जो है मुगलों को साफ कर देते हैं। और ये होता है औरंगज़ेब की घटिया धार्मिक नीतियों के कारण। तो औरंगज़ेब बड़े ही कट्टर थे, तो सिखों से उनकी लड़ाई हुई, मराठाओं से हुई, कई हिंदुओं से हुई, जाटों से हुई। तो इसके कारण जो है, जो अकबर के समय जो लिबरल पॉलिसीज चलती थी, लड़ाई झगड़े कम हो रहे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है, वो यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। तो औरंगज़ेब जैसे ही आते हैं, वो जो है मराठा एम्पायर जो है शुरू हो जाता है और मुग़ल एम्पायर का अंत भी शुरू हो जाता है। तो अगर हम देखें 1759 में, तो ये है भारत का नक्शा मराठा एम्पायर। तो देखिए कितना बड़ा एम्पायर यहाँ पे है। तो यहाँ मराठाओं को, तो जो मुगलों ने जो गेन करने में जो उनको 200 से ज़्यादा साल लगे थे, मराठाओं को उससे ज़्यादा गेन करने में 50 साल से भी कम समय लगा। तो बहुत ही जल्दी जो है मुगलों को साफ कर दिया मराठाओं ने और मैक्सिमम भारत पे जो है उनका नियंत्रण हो जाता है। तो यहाँ जो है एक अंग्रेज़ों का जब रूल शुरू होता है तो तब तक जो है मराठा ही जो है वो डोमिनेंट पोजीशन में आ गए थे। अब एक तीसरी चीज़ हो जाती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। यहाँ से जो है मराठाओं का भी जो है गड़बड़ शुरू हो जाती। तो वो हार के कारण ही जो है एक्चुअल में अंग्रेज़ जो है इस देश में कब्जा जमा पाया। वो नहीं होता तो अंग्रेज कभी यहाँ पे नहीं आ पाते, मराठाओं का ही जो है शासन चलता रहता। तो इस भ्रम को आप समझ गए होंगे कि 800 साल 1000 साल जो है किसी का कोई रूल नहीं चला, ज़्यादा से ज़्यादा हम 100 साल ही बोल सकते हैं कि रूल चला। और वो भी तब चल पाया जब आपने हिंदुओं के साथ सहयोग किया, तभी जो है वो रूल चल पाया। ऐसा रूल बिल्कुल नहीं चला कि आपने पूरी तरह से डोमिनेट करके जो है रूल किया हो। अब यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कितने बड़े शासन के बाद भी जो है भारत में हिंदू ही डोमिनेट कर रहा है। जबकि आप किसी दूसरे देशों का इतिहास देखेंगे, चाहे आप इंडोनेशिया का देख लें, ईरान का देख लें, इजिप्ट का देख लें, किसी भी देश का देख लें, अफ़गानिस्तान का देख लें, जहाँ पे भी मुस्लिम शासन हुआ वो पूरे के पूरे कन्वर्ट हो गए। पूरा उनकी भाषा नष्ट हो गई, उनका कल्चर नष्ट हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ पूरा डोमिनेंस था और भारत में ये पूरा डोमिनेंस कभी नहीं हो पाया। तो ये रही आज की बात। इस पर जो है आप अपने कमेंट ज़रूर रखिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।